Hello beta, how are you all? I hope all of you are fine and safe at your home. Enjoying your studies. I'm Shekhar Prajapati. I welcome you all on my channel. Beta, as in previous lecture we have discussed about what? We have discussed about lesson number 1 of the moments, that is of the literature short stories. Beta, today we are going to finish the lesson. In this lesson beta, we are going to do many things. We are going to discuss many things. As previously we have discussed about what? We have discussed describe the character of a child. Beta क्या? Character of a child, his parents, and we have also discussed about how a child fascinated by the things that he met while traveling to any place. In this lesson we have already discussed that a child is most happy with his parents. As a child was going to a fair, he was attracted by many things, but he never thought that he must be what? He might go anywhere to leave his parents. And as he lost in the fair, he was just thinking that his world is not anymore. So बेटा, as we have discussed about the lesson, अगर बेटा चर्चा की जाए तो बेटा हम लेसन में कहाँ तक कर चुके हैं बेटा डिस्कस? Our discussion is took place up to here. Means what is the last line? Lifted him up in his arms. Means when the child was about to what? When the child was about to crumble under the feet of the what? Of the people. So he was just lifted up by a person. एक व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को उठा लिया गया. What happened to the next? चलिए वहां से डिस्कस करते हैं. कहां से? यहां से. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बेटा क्या हुआ? उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा आप यहाँ कैसे आए और आप किसके बच्चे हो? आपके माता पिता कौन हैं? उस व्यक्ति ने पूछा कब? जब वो व्यक्ति क्या था? जब वो बच्चा कहाँ देख रहा था? क्राउड में देख रहा था. तो उसने उसे मोड़ते हुए, स्टीयर्ड मीन्स बेटा मोड़ते हुए, उसे मोड़ते हुए ऐसे घुमाते हुए कि बेटा आप यहाँ कैसे आए. ठीक है. द चाइल्ड वेप्ट मोर बेटरली. अब वो बच्चा और तेजी से रोने लगा और वो चिल्ला चिल्ला कर केवल एक ही बात कह रहा था. क्या कह रहा था बेटा? आई वॉन्ट माई मदर. मुझे मेरी माता चाहिए. आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरे पिता चाहिए. ठीक है बेटा. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. As he approached the ring. ठीक है बेटा. The child's throat tore into a thousands of thrills, sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. ठीक है. बच्चा क्या? अब बच्चा बस एक ही बात कह रहा है. क्या कह रहा है? मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. ठीक है. चलिए चर्चा करते हैं बेटा. उस व्यक्ति ने कोशिश की उस बच्चे को बहुत सारी चीजों से आकर्षित करने की. कैसे? उसने कोशिश की कि वो उसे राउंड अबाउट झूले पर ले जाए. लेकिन क्या हुआ? उसने बच्चे से पूछा कि घोड़े पर बैठकर झूलोगे? बच्चे ने क्या कहा? व्यक्ति ने बहुत आसानी मीन्स बहुत शांत स्वभाव से और विनम्रता से पूछा. लेकिन बच्चे का गला क्या? बिल्कुल शुभकियों से भरा हुआ था. वो केवल शुभकी ले रहा था, शुभक रहा था और केवल एक चीज कह रहा था कि मुझे मेरी माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. ठीक है. यस. द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. To the swaying cobra. Swaying means बेटा लहराता हुआ. कोबरा ऐसे लहराता है ना, तो वो कहता है लहराते हुए कोबरा की ओर वो बीन बजा रहा था. Listen to that nice music, child. He pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted in double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब वो व्यक्ति क्या? व्यक्ति ने सोचा भाई झूले पर नहीं झूलेगा, तो आगे चलकर उस व्यक्ति ने क्या किया?
आगे चलकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को कहा, रे वाह, बताओ कितनी सुंदर बीन बजा रहा है सपेरा। और सपेरा जब बीन बजा रहा था तो जो सांप था, कोबरा था, वो क्या कर रहा था बेटा, कोबरा लहरा रहा था बीन की आवाज पर। तो उस व्यक्ति ने कहा बच्चे से बहुत मीन्स विनम्रता से कि बेटा चलो आओ बीन की आवाज सुनते हैं, मीन्स सांप को देखते हैं सपेरा कैसे बीन बजा रहा था। लेकिन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया, ऐसे हाथों से ऐसे बंद कर दिया और झुकते हुए क्या कहा बेटा, बच्चे ने तनाव से झुककर, मीन्स बेटा डबल पिस्ट स्ट्रेन मीन्स तनाव से झुकते हुए ऐसे कि मुझे मेरे क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति उसे क्या कर, द मैन टुक हिम नियर द बैलून, द मैन टुक हिम नियर द बैलून, वो व्यक्ति अब उसे गुब्बारों के पास ले गया। ठीक है, क्या सोच कर ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो व्यक्ति उस बच्चे को अब कहां, गुब्बारों के पास ले गया, ये सोचकर कि इसका ध्यान इन गुब्बारों से थोड़ा बट जाएगा, ध्यान इसका बट जाएगा और ये उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका रोना बंद हो जाएगा, मीन्स ये क्वेटन चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून। व्यक्ति ने क्या पूछा बच्चे से कि बेटा आपको इंद्रधनुष के कलर का गुब्बारा चाहिए। He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति ने पूछा, बेटा बैलून लोगे, एक आपको मैं इंद्रधनुष के कलर का गुब्बारा दिलवाऊंगा। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपनी नजरों को गुब्बारों से हटा लिया और सुबकते हुए केवल एक चीज कहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो व्यक्ति अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ये बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लोर सेलर सेट, द फ्लोर सेलर सेट। अब क्या हुआ, बोर मीन्स बेटा धकेलते हुए या अपने साथ खींचते हुए। वो व्यक्ति उस बच्चे को, रोते हुए बच्चे को अपने साथ खींचते हुए कहां ले गया, कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ये खुश हो जाए और इसी तरह वो उसे खींचते हुए कहां ले गया बेटा, एक फ्लोर सेलर के कहां पर, गेट, वहां ले गया गेट पर जहां कौन बैठा था, फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, क्या कहा उसने, एक्सक्लेमेशन मार्क, लुक, देखो बेटा, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, देखो तुम्हें इनकी खुशबू आ रही है अच्छे अच्छे फूलों की। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। उसने क्या कहा, क्या आप एक माला, इन फूलों की एक माला अपने गले में पहनना पसंद करोगे, फूलों की माला अपने गले में पहनना पसंद करोगे। चलिए बच्चे ने क्या कहा, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोप। क्या हुआ बेटा, बच्चे ने उन फूलों से अपनी नाक को मीन्स सूंघ रहा था, उसने, वो व्यक्ति सूंघा रहा था, उसने क्या किया बेटा, उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली और दोबारा अपनी सुबकियों में दोहराते हुए, रिट्रेटेड मीन्स बेटा दोहराते हुए, अपनी सुबकियों में क्या कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets। व्यक्ति ने सोचा कि बच्चे को संतुष्ट कैसे किया जाए, ये बिखरा हुआ मीन्स पूरी तरह से बच्चा बहुत हतोत्साहित है, इसको खुश कैसे किया जाए, संतुष्ट करने के लिए वो कहां ले गया, उसे मिठाई की दुकान पर ले गया। द मैन टुक हिम टू द कॉर्नर ऑफ द स्वीट शॉप। वो उसे कहां ले गया, मिठाइयों की दुकान पर ले गया। What sweet would you like the child? उसने क्या कहा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद आएगी, उसने क्या कहा कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद आएगी। तो क्या हुआ, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only shopped। उस बच्चे ने क्या किया, अपनी जो आंखें हैं वहां से हटा ली और केवल अपनी सुबकियों में एक ही बात कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माताजी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए।
तो बेटा आप देखिए, एक बच्चा जो मेले जाता है, who goes to a fair and he was fascinated, attracted by many of the things. Suddenly when he went to the fair, he was means his interest and his fascination was over the zenith. वो कहाँ थी? चरम पर थी. But as soon as he entered the fair, he was attracted by many things. As he wanted the sweets first of all, but he didn't say to his parents because he thought that his parent would deny. Next he wanted the garland of the flowers, but he did not requested to his parents because he wanted that they will say that these are cheap. Next he was thinking about to go to the roundabout, not to the roundabout. Before that he went to the snake charmer, means सपेरे के पास गया था, लेकिन उसने क्या वहां भी जाने से अपने आप को रोक लिया था. क्यों? क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट वुड नॉट अलाउ हिम. Next when he was he was about to when he went to the roundabout, so he could not help himself without saying his parents, requesting his parent to grant him to go to the roundabout. ठीक है, जब वो राउंडअबाउट तक पहुंचा तो वो अपने आप को नहीं रोक पाया बेटा. क्या कहने से? उस झूले पर झूलने के लिए कहने से उनसे अपने आप को नहीं रोक पाया. मीन्स द चाइल्ड वॉज लॉन्गिंग फॉर मैनी थिंग्स इनिशिएटिवली. शुरुआत में बहुत सारी चीजों के लिए तरस रहा था. टू डू दैम, टू ईट, टू स्मेल, टू लिसन, ठीक है, एंड टू swing on the roundabout. But as soon as he lost in the fair, जितनी जल्दी वो फेयर में क्या हो जाता है बेटा? गुम हो जाता है. So he realized all the things which are meant for him when his parents were with him, all in vain. वो सभी कैसी हैं? बेकार हैं. कुछ उनका कुछ भी मतलब नहीं है, वो सभी चीजें बेकार हैं. ठीक है बेटा. तो क्या होता है? वो बच्चा क्या करता है बेटा? वो बच्चा की दुनिया क्या होती है वास्तव में द फैमिली एक्चुअली द पेरेंट्स आर द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. एक बच्चे की जो फैमिली है, एक बच्चे की जो दुनिया है, वो क्या है? उसके पेरेंट्स हैं. जब उसके पेरेंट्स बिछड़ जाते हैं तो वो सभी चीजें जिनके लिए वो रिक्वेस्ट अपने माता पिता से करना चाहता था या कर रहा था, वो सभी चीजें उसे ऑफर की जाती हैं. बट व्हाट वाज द रिजल्ट? ऑल द थिंग्स वर डिनाइड बाय द चाइल्ड. उस बच्चे से सारी की सारी चीजों को डिनाई कर दिया जाता है. क्यों कर दिया जाता है बेटा? क्योंकि वो बिछड़ जाता है अपने पेरेंट से, और वास्तव में उसके पेरेंट ही उसकी दुनिया होते हैं. ठीक है बेटा. तो बेटा एक बच्चा जिसकी दुनिया वास्तव में उसके माता पिता होते हैं, द थिंग्स विच माइट बी मीन अ लॉट्स अर्लियर फॉर हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वाज विद हिम, when they was losted or they left him, yet he was just departed by them fortunately or unfortunately. So all the things which might be meant a little bit for him, a lots for earlier him or her earlier, was of no mean when his parents was not with him. Means एक बच्चा के लिए जो सारी सांसारिक भौतिक चीजें होती हैं, उनकी अहमियत तभी होती है बेटा जब उसके माता पिता उसके साथ होते हैं. ठीक है. चलिए बेटा, जो लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं. आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1. क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1? व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? व्हाई डज ही लैग बिहाइंड? वो उन चीजों के पीछे क्यों जा रहा था? ठीक है, वो चीजें क्या क्या थी? सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑन हिज वे टू द फेयर. आंसर क्या बेटा? ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर. ठीक है बेटा, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, अ स्विंग एंड क्या बेटा? अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट. He gets attracted towards these things, so he lag behind. Means वो बच्चा रास्ते में बहुत सारी चीजों को देखता है. ठीक है, और उन चीजों को देखने के बाद वो उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है, इसीलिए वो उनके पीछे जाता है या उनकी ओर चल देता है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे. क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है
इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स। फेयर में बच्चा बहुत सारी चीजें चाहता था। वट आर दे, वो क्या थी? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मीन्स बच्चा फेयर में बहुत सारी चीजें चाहता था, वो थी क्या क्या, और वो चल क्यों देता था उनके बारे में बिना पूछे। तो बेटा आंसर क्या है, आंसर के बारे में देखते हैं। आंसर है बेटा द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर। बच्चा फेयर में बहुत सारी चीजें चाहता था, ठीक है। ही वॉन्ट्स to have toys, different sweets, garlands, balloons of different colors, and he has a keen desire to enjoy the roundabout. उसकी बहुत ज्यादा डिजायर थी किसके बारे में, किसके बारे में बेटा? राउंड अबाउट के बारे में। लेकिन वो क्यों चल दिया, वो चल क्यों दिया? ही मूव्स, क्या हुआ बेटा? he moves on without waiting for an answer because whenever he stops to see things his parents gave him a cautionary call, come child come। मीन्स वो उन सभी चीजों को चाहता था लेकिन वो चल देता था। क्यों चल देता था बेटा? क्योंकि उसके माता पिता उसे चेतावनी भरी आवाज लगाते थे कि जल्दी आइए बेटा, अदरवाइज आप मेले में बिछड़ जाओगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन थर्ड कहता है when does he realize that he has lost in his way, how have his anxiety and insecurity been described। मीन्स वो कहता है कि बच्चे को कब रियलाइज, कब महसूस हुआ कि वो मेले में खो चुका है, और उसकी जो चिंता थी और उसकी असहजता थी उसे डिस्क्राइब करिए। द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर। बच्चा मेले में क्या देखता है? एक राउंड अबाउट को देखता है। एंड ही गेट अट्रैक्टेड टू इट, उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। ही वांट्स टू हैव अ राइड ऑन इट, वो उस पर झूलना चाहता है। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट, वो अपने माता पिता से चाहता था कि वो उसे परमिशन दे दें इस पर क्या करने की बेटा? झूलने की। लेकिन हैविंग नो रेस्पॉन्स ऑन पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, जब वो बच्चा कह रहा था कि मुझे परमिशन दीजिए तो उसके माता पिता की ओर से उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। तो उसे ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट इट इन हिज वे। जब उसने दोनों ओर आगे पीछे चारों ओर देखा तो उसके माता पिता वहां नहीं थे, उसे महसूस हुआ कि वो मेले में खो गया। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम। अब वो बच्चा चिंता क्यों हुई? चिंता में वो इधर उधर भागने लगा और रोने लगा। किस वजह से? डर की वजह से, क्योंकि उसके माता पिता के रहते हुए उसे कोई डर नहीं था। ठीक है, तो उनके खोने के बाद वो क्या हुआ बेटा? वहां से इधर उधर भागने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। बच्चे ने उन सभी चीजों में अपना इंटरेस्ट क्यों खो दिया जो चीजें वो पहले चाहता था? जैसा कि मैंने बताया बेटा, बच्चे के लिए उसकी दुनिया उसके माता पिता होते हैं। देखते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गोट लॉस्ट इन द फेयर। क्यों? बच्चा जो चीजें पहले चाहता था उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो मेले में खो चुका था। ही इज पैनिक स्ट्रिकन फॉर बीइंग लॉस्ट, वो बहुत ज्यादा चिंतित था या तनाव में था। किस वजह से? खोने की वजह से मेले में। नाउ ही फर्स्ट वांट्स हिज पेरेंट्स, he is afraid and feels unsafe। क्या हुआ? बच्चा क्या था? सबसे पहले कुछ चीज नहीं चाहता था, वो क्या चाहता था? अपने माता पिता को चाहता था कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, और वो डरता था और क्या? उसे अनसेफ, उसे क्या महसूस होता था बेटा? उसे असुरक्षित वहां पर महसूस हो रहा था बिना उसके पेरेंट्स के। ठीक है बेटा। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड डज द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स। आप क्या लगता है आपको? इट इज बेटा इट माई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन योर लैंग्वेज, ऑन लैंग्वेज, as you go to the fairs many of the times, and what you might have seen many of the children there, they were weeping whatever was there, but later you got an information that they have met their parents। ठीक है, so whatever is there it must be in your language, but the answer is here is what? Yes, I feel that the child finds his parents at last। हाँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि बच्चे को आखिरकार उसके माता पिता मिल गए होंगे। The kind hearted person must have tried his best to find his parents।
वो व्यक्ति जो इतना दयालु था उसने जरूर पूरी कोशिश की होगी उसको उसके माता पिता से मिलाने में। ठीक है बेटा, आगे देखते क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटच्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड। नो स्टोन मीन्स उन माता पिता ने भी दूसरी ओर, जब उनका बच्चा उनसे बिछड़ गया, केवल वो बच्चा ही परेशान नहीं था, उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुनिया बच्चे की माता पिता है वही दुनिया माता पिता की बच्चा भी होता है। तो बेटा क्या दूसरी ओर उसके माता पिता ने भी मेले में हर एक चीज को खंगाल लिया होगा अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। टॉक अबाउट इट पेज नंबर 6 पर है। क्वेश्चन 1 क्या, हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। बेटा आंसर आपके पास खुद होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार यहां पर इसे डिस्कस कर देता हूं। इट इज वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट। बहुत कॉमन होता है बेटा, बच्चे मेले में खो जाते हैं। इन द फेयर एंड क्राउड्स हार्डली अ डे पासिस व्हेन नो चाइल्ड गेट लॉस्ट। मुश्किल से कोई दिन गुजरता होगा जब कोई बच्चा ना खोता हो। इट इज द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। बच्चों और माता पिता दोनों की ड्यूटी होती है टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। खोने की ना खोने की दोनों की ड्यूटी होती है। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को बेटा, द पेरेंट्स नीड टू विजिलेंट एंड मोर केयरफुल एट क्राउडेड प्लेस। माता पिता को बहुत ज्यादा समझ और सूझबूझ से काम लेना चाहिए वो जगहें जो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती हैं। बिफोर एंटरिंग अ क्राउड प्लेस, एक क्राउडेड प्लेस में एंटर होने से पहले पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चाइल्ड शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। माता पिता को पहले ये क्या कर देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए कि बेटा हम यहां घुस रहे हैं गेट पर, अगर कोई भी व्यक्ति खो जाए तो वो यहां पर आकर क्या करेगा, इंतजार करेगा। टिल देन वी विल बी बैक सून। मीन्स इन केस अगर कोई खो जाए तो एक फिक्स्ड पॉइंट ऐसा डिसाइड कर ले कि अगर कोई भी बिछड़ जाता है तो वो यहां आकर खड़ा होकर इंतजार करे, हम सभी यहीं पर आएंगे। दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोरीज होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स। उन्हें बच्चे को क्या याद करा देना चाहिए, घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स और उनके माता पिता का नाम बच्चे को याद करा देना चाहिए। इट इज इनिशिएटिव बेटा, ये सबसे शुरुआती चीजें होती है जो हमने एक बच्चे को बतानी चाहिए। दूसरी ओर दे शुड पुट और पिन अप अ नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड with full details. They should attend to the need of the child and never leave him behind in case he happens to stand at some shop. Means बच्चे को क्या ध्यान पूरा रखना चाहिए, उसकी पॉकेट में कोई डिटेल्स वाला एक पेपर डाल दें जिससे पता चल जाए कि ये बच्चा किसका है और कहाँ का है, इन केस अगर बच्चा कहीं पर खो जाता है। ठीक है बेटा, आगे ऑन अदर हैंड द चाइल्ड शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स एट अ क्राउडेड प्लेस। बच्चे को किसी क्राउडेड प्लेस पे अपने माता पिता के हाथ पकड़ने चाहिए। He should keep an eye on his parents so as he not lose sight of them. In case of any emergency, the help of police, help center and media can be taken. अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बच्चा पैनिक ना हो, माता पिता पैनिक ना हो। हेल्प किसकी ली जाए बेटा, पुलिस की और मीडिया की हेल्प हम वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट द लॉस्ट चाइल्ड वॉज अ नेचर लवर। आपको कैसे पता चलता है कि लॉस्ट चाइल्ड क्या एक नेचर लवर था। देखते हैं आंसर क्या है बेटा। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज अट्रैक्टिव बाय नेचर लिटिल एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनोसेंस। बच्चा नेचर लवर क्यों था, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा था। जब उसकी मदर व्हेन हिज मदर diverted his attention towards the mustard field, he saw the flowers which were in the nascent stage and flowering. जब उसकी माता ने उसे कहा मीन्स किसके, मस्टर्ड के सरसों के खेत से बुलाया तो उसने देखा एक जगह पर फूल, बहुत सारे फूल बिखरे हुए हैं। द फ्लावर्स ऑफ द फील्ड वर पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड। ठीक है, खेत के जो फूल थे वो कैसे थे, जैसे पिघला हुआ सोना बिखरा हुआ हो कहीं पर। ही टेकन शो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड बस्टिंग अबाउट द गैंडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग ब्लैक बीज एंड बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फॉर द फ्लावर्स। वो उन तितलियों के उन सभी चीजों के पीछे भाग रहा था जो प्रकृति में होती हैं और जो वास्तविक रूप से प्रकृति का एक भाग होती है, और वो उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था। The child wanted to catch the dragons. This
बट दे वेंट अवे फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग। वो चाहता था उन तितलियों को पकड़ ले, लेकिन वो क्या, फरफराते हुए और फड़फड़ाते हुए उड़ जाती। ही ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड टू लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, ठीक है, that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। वो उन सभी चीजों से प्रकृति की चीज होती है उन सभी से अट्रैक्टेड था, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी, उन्हें भी वो देख रहा था। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the fair। जैसे वो मेले में घुसता है तो उसके ऊपर क्या, एक शॉवर गिर जाता है, किसका, फूलों का, और वो उनसे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। He forgot about his parents and began to gather the raining petals in the hands। Again when he heard the calling of doves, he ran towards his parents। वो अपने माता पिता की ओर भागने लगता है। shouting about, वो बच्चा अपने माता पिता की ओर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि वो कबूतरों की कूकने की आवाज सुन लेता है। ठीक है बेटा। सो इट वॉज अ डिस्कस अबाउट द लेसन। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए, हम लोगों ने लेसन को कंप्लीट किया है। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी, डू द वर्क इन द फेयर नोटबुक। आप सभी ने जो वर्क है ये कहाँ करना है बेटा, आप सभी ने ये वर्क आपकी फेयर नोटबुक में करना है। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, फेयर नोटबुक में वर्क कंप्लीट करें। क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। जो बेटा टॉक अबाउट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे भी ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करिएगा। ठीक है, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। इफ यू फाउंड द वीडियो वर्थ वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर स्टडीज।